In this video we will see electric field due to a short dipole at any point. At any point means the point of interest does not lie either on the axis of the dipole or on the equator of the dipole. So here I have taken a short dipole of length 2L. You know that the line joining the charges is known as axis and the perpendicular bisector of the dipole is known as equator. This is the point of interest, and this point of interest is neither on the axis nor on the equator. Also we know that the dipole moment is equal to the product of magnitude of either of the charges q and length of the dipole, that is 2L. In the last video we had seen for a short dipole electric field at the axis is given by 2 kp upon r cube. P is the dipole moment, k is constant and r is the distance. Also at the equator we have studied for a short dipole electric field equals to kp upon r cube. K is constant, P is dipole moment, R is the distance. All the distances are always measured from the center of the dipole. The direction of electric field at the equatorial point is opposite in the direction of dipole moment. So dipole moment is here from negative to positive, that is along the positive x-axis. So here at the equator the direction of electric field will be towards the negative x-axis. Using these two ideas we will find the electric field at this point. So just to see what I am going to do, this situation I am going to simplify in the terms of dipole moment and their components. So here just to see the direction of dipole moment is along positive x-axis. So here I have taken, this is the dipole moment along the positive x-axis. The point of interest lies at a distance r at an angle theta. So with the red ink I have shown the point of interest here with the red ink at a distance r and at an angle theta. Now the question arises how to find the electric field at this point. So what I have done, since electric dipole moment is a vector quantity with the arrow I have shown here, I have drawn a Cartesian for my convenience. The x-axis is along the position vector. Position vector means the vector showing the position of point of interest where you have to find the electric field, and this is the y-axis. Now this electric dipole moment can be resolved. So one of the component of this dipole moment P will be P1, whose value is P cos theta along this direction. This is a simple case of resolving a vector. This is a vector P and this is angle theta made with the x-axis. So along the x-axis the vector P has its component P cos theta, and P cos theta I am representing with P1. Whereas the another component of the dipole moment P is along this y-axis, this one, and here you can see this component is P sin theta and this I am representing P2. So thus I have divided this electric dipole moment P in the two components P cos theta and P sin theta, or P1 and P2. Now if you observe for P1, if I say for P1 means P cos theta, and this is the direction of P1, I have used this arrow. This is the point of interest, and this point of interest is on the axial point of the P1. This point of interest, let us give us some name M, point M, is on the axial point, is on the axis of
P1. So for P1, point M is on axis of dipole moment P1. Remember, P1 is one component of your given dipole P. So if M is the point on the axis, so we will use the formula of axial electric field due to P1 at point M. Let the electric field is E1. The formula will be 2K P1, and the distance of this point of interest from this center is R cube. This one. So electric field at point M due to P1 is 2K P1 by R cube. Why I have used this formula? Because this E1 is the electric field on the axis of component of dipole, that is on the P1. Let us give it equation number 1. Now this is the time to show the direction of electric field E1. We have studied that at the axis the direction of electric field always in the direction of dipole moment. So dipole moment is along positive x-axis, so here the electric field is also along positive x-axis. Now just you see what is the direction of P1. So the direction of P1 is, this is the direction of P1. So electric field E1 will be in the same direction. So I will represent the electric field E1 with this E1. This is the direction of electric field E1, because dipole moment and electric field both are in the same direction for the equatorial point. Now this you observe carefully that this point M, which is the point of interest, is on the equatorial point. This is the another dipole P2. P2 is the another component of this dipole P. P का दूसरा component है P2. This is P2 and this is the point of interest. तो ये P2 है और ये point of interest है, यानी कि this point of interest वाली जो लाइन है वो P2 को बाइसेक्ट कर रही है. इसका मतलब हुआ कि ये वाली लाइन इक्वेटोरियल लाइन हो गई P2 के लिए. तो इसका मतलब हो गया नाउ M is equatorial point. इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर P2. बड़ी स्पष्ट अपना नजरिया रखिएगा. ये P2 है, दिस इज, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली जो लाइन है वो देखिए P2 को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली लाइन इक्वेटर कहलाएगी P2 के लिए. तो पॉइंट M हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर P2 इस कंपोनेंट के लिए. अब अगर ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया तो वी शुड यूज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट. लेट अस रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड with E2. The formula of electric field at the equatorial point for a short dipole is Kp by R cube. So K dipole moment P2 and the distance is R cube. Equation number 2. K P2 और यहां से ये P2 है इस डायरेक्शन में और ये डिस्टेंस R दिया हुआ है. ये अब बात है इसका डायरेक्शन E2 का दिखाने के लिए. चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो जैसे मैंने E1 का डायरेक्शन दिखाया है वैसे ही अब मुझे E2 का डायरेक्शन दिखाना होगा. और E2 का डायरेक्शन आप देखिए कि E2 का डायरेक्शन इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है. तो P2 का डायरेक्शन इधर की तरफ है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, ये ध्यान रखिएगा. तो इस जगह पे अगर मैं इसकी वजह से P2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का डायरेक्शन दिखाऊंगा तो ठीक इसके अपोजिट जाएगा और अपोजिट में ये जा रहा है. ये दिस इज E2.
तो E1 इधर चला गया, E2 इधर चला गया। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1, ये वाला है, दिस इज, इसकी वजह से। E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P2, इसकी वजह से। अब दोनों की वजह से P1 P2 यानी दो कंपोनेंट्स बनाए थे, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नाउ दिस इज द टाइम टू सिंप्लीफाई दिस। अब हमें ध्यान रखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ द वेक्टर्स का हेल्प लेना होगा, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स का हेल्प लूंगा तो ये बन रहा है आपका पैरेललोग्राम, एंड दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। E1 मालूम है, E2 मालूम है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ आई एम कैलकुलेटिंग E इक्वल्स टू अंडर रूट by law of parallelogram E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos। अब ये E1 E2 के बीच का एंगल देखिए तो 90 डिग्री होगा। ये आपका x एक्सिस के अलॉन्ग है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो 90 डिग्री होगा, तो cos 90 0। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 90 हो गया 0। अब E1 E2 का वैल्यू यहां से अगर हम प्लेस कर दें, E1 का वैल्यू एंड E2 का वैल्यू, तो सॉल्व करने में आसानी होगी। बस अब यहां पे सिंप्लीफिकेशन पे आप लोग ध्यान रखिए। सो E1 वैल्यू ऑफ E1 इज 2kp1 r3। सो उसका स्क्वायर करूंगा तो 4k स्क्वायर p1 स्क्वायर अपॉन r पावर 6 प्लस E2 स्क्वायर। वैल्यू ऑफ E2 इज kp2 अपॉन r क्यूब। जब इसका स्क्वायर होगा तो k स्क्वायर p2 स्क्वायर अपॉन r पावर 6, k स्क्वायर p2 स्क्वायर अपॉन r पावर 6। अब यहां से आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा कि कुछ क्वांटिटीज यहां पे कुछ टर्म्स कॉमन हैं जो कि हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर कॉमन निकाल लें तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। लगे हाथ आप ध्यान रखिए, P1 और P2 का वैल्यू रख दूं मैं, तो P1 का वैल्यू है P cos थीटा एंड P2 का वैल्यू है P sin थीटा। और P क्या चीज है? P इज द डाइपोल मोमेंट। आपको जो डाइपोल दिया गया था ये इसका डाइपोल मोमेंट है। थीटा क्या चीज है? थीटा आपका पोजीशन वेक्टर का एंगल है कि डाइपोल मोमेंट के कितने डिग्री पे वो पॉइंट आपका एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमारे पास सारा डेटा मौजूद है। अब मैं यहां पे कॉमन अगर निकालूं तो k स्क्वायर अपॉन r पावर 6 कॉमन हुआ, बचेगा यहां पे 4 p1 स्क्वायर, और P1 का वैल्यू P cos थीटा। तो अगर P1 स्क्वायर करता हूं तो P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये आएगा, प्लस k स्क्वायर अपॉन r पावर 6 बाहर हो चुका है, बचेगा P2 स्क्वायर, और P2 का वैल्यू है P sin थीटा। तो P2 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो P स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सो दिस इज P स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब फिर से एक बार कॉमन निकालने का चांस मिल गया, P स्क्वायर, तो P स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। अब K स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो K R पावर 6 रूट से बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा R क्यूब, और P स्क्वायर भी कॉमन निकल गया, रूट के बाहर आएगा तो P बच जाएगा। सो ओवरऑल वी हैव हियर K P अपॉन R क्यूब आउट ऑफ द रेडिकल साइन, एंड नाउ दिस रेडिकल मीन्स स्क्वायर रूट contains only 4 cos square theta plus sin square theta. Now, sin square theta, you can write that sin square theta equals to 1 minus cos square theta. दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दूं तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा
वो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा के पी अपॉन आर क्यूब। स्क्वायर रूट में देखिए, स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा और +1। So this is the electric field due to a short dipole at any point at a distance r at an angle theta with dipole moment। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया यहां का कि at a distance r from your dipole at a distance r at an angle theta इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना निकल के आया। अब जरा हम वेरीफाई करना चाहते हैं, उसको भी हम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने दिखा चुका है यहाँ पे। सो अगर मैं ये एंगल ले लूं कि दिस इज द एंगल अल्फा विद E1, मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E is at an angle E1 at an angle alpha with respect to E1, यानी कि x एक्सिस या E1 या पोजीशन वेक्टर वाली लाइन से अल्फा के एंगल पे हमारा है। तब इसका कैलकुलेशन देखिए कितना आसान हो जाता है। तब यहां पे हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए, tan अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा लिया, परपेंडिकुलर ये होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर इस E2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो अगर ये रेड एरो E2 है तो उसी की लंबाई के बराबर ये भी है। सो दिस इज E2 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस ग्रीन एरो में E1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, तो E2 बाई E1 tan अल्फा। अब E2 और E1 का वैल्यू तो आपको पता है, KP2 बाई आर क्यूब एंड 2KP1 बाई आर क्यूब, वैल्यू रख देते हैं। तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका E2 इक्वल्स टू KP2 बाई आर क्यूब एंड E1 2KP1 बाई आर क्यूब। अगर इसको हम सॉल्व कर दें, देन वी विल गेट tan अल्फा इक्वल्स टू K एंड K कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, सो दिस इज P2 अपॉन 2P1। और P2 P1 का वैल्यू अगर रख दिया जाए तो P2 का वैल्यू आपको याद है कि P2 का वैल्यू है P sin theta। P is the dipole moment of given dipole, and theta is the angle at which I have to calculate electric field. 2 P1 का वैल्यू P cos theta, P2 and P1 ऑलरेडी आपके सामने है, P1 P cos theta, P2 P sin theta। अब tan अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, P एंड P कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। यानी कि आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एन एंगल अल्फा with respect to E1 or with respect to this position vector or with respect to this x axis। तो अल्फा का कैलकुलेशन कैसे होगा, tan अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 tan थीटा, थीटा इज द एंगल, दिस एंगल। अब देखिए इस फार्मूले का, ये जो फार्मूला आपके सामने आया है, नाउ सपोज दैट एक डाइपोल मैंने लिया P, this is the middle of the dipole, और ऑफ कोर्स आप जान गए कि दिस इज द एक्सिस, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि मैं दिखाया नहीं था, जरूरत भी नहीं थी। एक्सिस,
मैंने कहा कि इसके एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस r पॉइंट A है, यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये जो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल दिया गया है उसका डायपोल मोमेंट P, डिस्टेंस r, तो डायपोल मोमेंट P, डिस्टेंस r, थीटा पे बस ध्यान देना है। तो थीटा इज द एंगल, जरा एक बार गौर कीजिएगा कि थीटा किसके बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव इधर एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर, उसके बीच का एंगल थीटा है। यहां पे आइए जरा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव, एरो भी लगा हुआ है। पोजीशन वेक्टर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहां पे थीटा का वैल्यू हो गया 0 डिग्री। अब अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री यहां पे रख दिया जाए तो देखते हैं क्या आता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब, 3 cos स्क्वायर 0, 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1, cos 0 का वैल्यू 1, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4, एंड 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 kp बाई आर क्यूब। और देखिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया है यहां पर एट द एक्सियल पॉइंट। चलिए डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन का फार्मूला आप देखिए, tan अल्फा, यानी कि पोजीशन वेक्टर के साथ अल्फा के एंगल पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप पोजीशन देख लीजिए कि पोजीशन इज, दिस इज द पोजीशन। अब इसी के साथ अल्फा एंगल, अब अल्फा एंगल इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है कि इधर बन रहा है, किस तरफ बन रहा है, वही अल्फा देखना है। तो यहां पे डायरेक्शन के लिए हमें करना होगा कि tan अल्फा, फार्मूला ऊपर है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, और थीटा यहां पे कितना आया है, थीटा आया है यहां पे 0 डिग्री। थीटा कैसे 0 डिग्री आया है याद कीजिए, थीटा 0 डिग्री इसलिए आया है कि थीटा कैसे नापा जाता है, डायपोल मोमेंट जो दिया गया है और पोजीशन वेक्टर जो दिया गया है कि कहां पे निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बीच का एंगल, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 है। tan 0 मैंने कर दिया, tan 0 का वैल्यू 0, तो tan अल्फा हो गया 0, और tan अल्फा 0 होने का मतलब कि अल्फा इज 0 डिग्री, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने कहा कि ये आपका डाइपोल है, ये डाइपोल का सेंटर, एंड दिस इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर। मैंने कहा कि एट अ डिस्टेंस r, दिस इज अ पॉइंट B, यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए यूजिंग दिस फार्मूला। अब इस फार्मूले के हेल्प से हमें इस पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो P इज द डाइपोल मोमेंट, जो कि क्वेश्चन में भी दिया गया है कि P इज द डाइपोल मोमेंट, R इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस भी R दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में R दिया रहे, D दिया रहे, जो भी दिया रहेगा वो डिस्टेंस आप नोट करेंगे। बाकी काम है थीटा का, तो चलिए थीटा निकालते हैं। तो थीटा पे गौर कीजिए, थीटा किसके बीच का एंगल है, डाइपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर। तो R पॉइंट B इस साइड में है, तो पॉइंट B इस साइड में है, डाइपोल मोमेंट इस साइड में है, दोनों के बीच का एंगल आया 90 डिग्री। दिस इज, so theta also you have got. So now if we place all the values in this equation, so electric field equals to kp by r cube, kp by r cube, this is, and under root 3 cos square 90, cos 90 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, बचा 1, तो √1 का वैल्यू 1, so electric field is kp by r cube. Same formula we had derived. This is the formula of electric field at a equatorial point. Electric field at equatorial point. अब बात करते हैं डायरेक्शन की।
तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन का फार्मूला है tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। याद रखिएगा अल्फा का जो एंगल बनेगा वो आपके पोजीशन वेक्टर वाले से बनेगा, यानी कि अगर पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो अल्फा अब यहीं से देखना है कि अल्फा इधर जा रहा है, अल्फा इधर जा रहा है कि अल्फा इधर जा रहा है, अल्फा इधर आ रहा है। अगर अल्फा 0 डिग्री होगा तो सेम इसी डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अल्फा 180 डिग्री आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। अल्फा 90 डिग्री जाएगा तो पोजीशन वेक्टर इधर है, ये इधर आएगा। चलिए ट्राई करते हैं। सो tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, तो डायरेक्शन निकालते हैं। tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, थीटा 90 डिग्री, तो tan 90 हो जाएगा और tan 90 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 2 इनफाइनाइट ही रहेगा, यानी कि tan अल्फा हो गया आपका इनफाइनाइट, यानी कि अल्फा का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और ये अल्फा किसके साथ में अपना है? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर देखिए इस साइड में है, अब इसके डायरेक्शन से 90 डिग्री बनाइए। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए इस डायरेक्शन से 90 डिग्री आपने बना दिया। डाइपोल मोमेंट के साथ 180 डिग्री का एंगल बन गया, जबकि पोजीशन वेक्टर के साथ 90 डिग्री। आपने जो डायरेक्शन डिराइव किया गया है अल्फा, वो अल्फा ध्यान रखिएगा कि अल्फा किसके साथ बनाए हैं आप, तो याद रखिएगा कि अल्फा किसके साथ बना रहे हैं। अल्फा इज द एंगल, ये पोजीशन वेक्टर वाली लाइन रेड कलर में दिखाई दे रही है, इसी के साथ आपने ये एंगल अल्फा बनाया है। इसीलिए इस केस में भी अल्फा का वैल्यू 0 आया तो पोजीशन वेक्टर इधर है, तो इसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस केस में इक्वेटोरियल में अल्फा का वैल्यू 90 आया तो पोजीशन वेक्टर से 90 डिग्री। सो इस तरह से the very important formula electric field due to a dipole at any point is given by kp by r cube in the bracket 3 cos square theta plus 1, and the direction of electric field is given by tan alpha equals to 1/2 tan theta. So we will conclude it here only, and after this in the next video we will start electric flux. So study and revise all these topics, watch the previous videos and recall all the informations that you have collected in this chapter 1. Thank you.